Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to I Am Solutions. So I am back with another video. So as in my previous video, I was teaching you guys this book International Secondary Science, and I have taught you guys chapter 7. Now let's start chapter 3, that is ecology. So let's begin it. So in biology, you have heard many terms, and three of them is that ecosystem, environment, and biodiversity. And I hope you guys have studied biodiversity in the beginning of this chapter, as it was a part of that chapter. So let's see. Before start moving further, let me tell you what is basically ecology when it comes in your paper. Ecology basically is the study of relationship between living organisms, okay, including humans and their physical environment. It seeks to understand the vital connections between plants and animals and the world around them. Let me show you definition so that you guys can write that in your paper. Okay, you guys can write this basically in Urdu. We can, if I would translate this in Urdu, basically ecology होता है कि ना humans और animals का जो relation है ना, वो बताना वो होता है, और उसकी physical environment वो basically होता है ecology. ठीक है, now let's start. The environment. The environment describes the surrounding in which person, other animals or plant live. The environment of an organism involve physical features such as type of soil, air, the temperature, the type of water or the altitude. The average rainfall, light level and the temperature basically एनवायरनमेंट में बस ये है कि जो आपके जो सराउंडिंग में जो है ना, जितनी भी चीज़ें हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है ना, ये हर एक चीज़ जो है ना वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे. वन ऑफ देम इज एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में अब सॉइल भी है, एयर भी है, टेम्परेचर भी है, एल्टीट्यूड भी है, रेनफॉल भी है. या ठीक है, यहाँ पे जैसे दो पिक्चर्स देख लो आप. ठीक है, ये माउंटेनियस एरिया है और ये लो लैंड प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान है. ठीक है, नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम, द मेन थिंग. Each environment contains a number of ecosystem. हर environment के पास बहुत सारे ecosystem होते हैं. ठीक है, ecosystems जो है ना वो बहुत सारे organisms से बना होता है. For example, animal, plants and microorganisms that live in area and the physical environment they interact with. यानी ये जो microorganisms जिस environment से interact कर रहा है उसे कहते हैं हम ecosystem. ठीक है, some ecosystems are very small. कुछ ecosystem बहुत small होते हैं, जैसे एक rock pool or garden. Other are very big, सच एज साहिल और इंडियन ओशन. ठीक है, कुछ बहुत छोटे इकोसिस्टम होते हैं, कुछ बड़े होते हैं. ये आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है. इसे कहते हैं हम इकोसिस्टम. हर इकोसिस्टम के बाद जो है ना प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं खाना बनाने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स. ठीक है, द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम. ठीक है, द मेन थिंग. It measures how many different types of organism it contains. ये बताता है कि ना कितने organisms हैं ये हमारे environment में. जितनी बड़ी organisms की variety होगी उतना बड़ा हमारा biodiversity of an ecosystem होगा. ठीक है, यानी जितने ज़्यादा organisms यानी जितने ज़्यादा animals और plants और humans, तो उतने ज़्यादा जो है ना वो biodiversity ज़्यादा होगी. Biodiversity important बहुत होती है because ये ecosystem को survive करने में help करती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जो इकोसिस्टम वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक इंडस वैली डेजर्ट की एक एग्जाम्पल दी हुई है. इंडस वैली डेजर्ट इकोसिस्टम हैज टफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, only about 700 mm of rainfall each year and summer temperatures go over 45 years. यानी ये बता रहे हैं कि ना डेजर्ट है ना, यहाँ पे 700 mm पे रेनफॉल होती है हर साल पे, और टेम्परेचर जो है ना 45 डिग्री तक जाता है. यहाँ पे बहुत कम ट्रीज हैं और मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो छोटी छोटी घास फूस इस तरीके की हैं. ठीक है, आगे लेट्स कंटिन्यू. ये लेकिन वो जो छोटे छोटे शर्ब्स होते हैं ना वो जो है ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं, लाइक रेड नेक्ड, ये इस तरीके के जानवर, फैल्कन हो गया, मैमल्स हो गए, हिडना, लेपर्ड, कैरकल और बहुत सारे रोडेंट को भी. ठीक है, the desert covers a big area but has relatively few species. So it is an area of low biodiversity. यानी देखो डेजर्ट थोड़ा सा है. ठीक है, और इसके अलावा जो है ना ये जो है ना जो इसके स्पीशीज है ना वो भी बहुत थोड़े से, जिसकी वजह से क्या है लो बायोडाइवर्सिटी है. ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट यानी
इन अ रेन फॉरेस्ट में कंटेन ह्यूज नंबर ऑफ स्पीशीज। एक रेन फॉरेस्ट है उसमें जो है ना नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ना हाई बायोडाइवर्सिटी होगी। ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। यानी जितने कम ऑर्गेनिज्म उतनी कम बायोडाइवर्सिटी, जितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। सिंपल। Ecological relationship. To help us understand ecosystem, we look at the biological process and the ecological relationship on which they are built. ठीक है। Ways of obtaining food. ठीक है। इकोलॉजिकल रिलेशनशिप किस तरीके से पता चलता है आपका कि आप खाना किस तरीके से ले रहे हैं। यानी प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस और प्लांट्स को खाने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं। ठीक है। फीडिंग रिलेशन इंक्लूड फूड चेन्स ऑन फूड वेब, ये सब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। इकोलॉजिकल रिलेशनशिप सच एज predation, symbiosis, and competition. The cycle of substance through an ecosystem, including carbon dioxide, oxygen, based on the interaction between chemical reactions such as photosynthesis, respiration, and combustion. डोंट गेट वरी गाइस, मैं बताऊंगी ना आपको आगे जो है ना इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि इकोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड आपको पता चलेगा कि जो है ना आपका जो एनवायरनमेंट है ना बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो किस तरीके से चीज़ों पे सरवाइव करती है। ठीक है। एक इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी आता है 22 मई। नाउ लेट्स स्टार्ट 3.2। सो 3.2 इज अबाउट फूड चेन्स, फूड वेब्स एंड डीकम्पोजर्स। ठीक है। I will try my best to make it as much as easy because I know बहुत से students को ना ये chapter बहुत मुश्किल लगता है, but it's not difficult. It's just a piece of a cake and it's the way कि आप इसको किस तरीके से समझते हो। ठीक है। भाई बायोलॉजी को समझने के लिए ना बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे भी ना बहुत सारे मॉडल्स हैं, फूड चेन्स हैं, फूड वेब्स हैं। ठीक है। और पिरामिड्स हैं। अब सबसे पहले उनमें से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक फूड चेन से। हम लेट्स लर्न व्हाट इज प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। ठीक है। ये सब लोग अपने क्या कहते हैं चाइल्डहुड से पढ़कर पढ़ते हुए आ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आती। नाउ I will explain you guys. The first organism in a food chain is producer. Learn this. जो पहला ऑर्गेनिज्म होगा ना फूड चेन में वो हमेशा प्रोड्यूसर ही होगा और मोस्टली जो है ना वो प्लांट्स ही होते हैं। ठीक है। प्रोड्यूसर ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम द सन एंड मेक फूड फॉर बाय फोटोसिंथेसिस। अब ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जो प्लांट्स है ना वो अपना खाना किस तरीके से बनाता है। प्लांट्स टेक एनर्जी फ्रॉम द सन एंड मेक फूड बाय थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आई होप ईच एंड एवरी पर्सन नो दिस। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना एनिमल ईट द प्लांट आर हार्बीवोरस। जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम हार्बीवोरस कहते हैं। हार्बीवोरस डाइजेस्ट प्लांट्स एंड यूज द एनर्जी एंड मटेरियल टू कैरी आउट ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ। हार्बीवोरस क्या करते हैं उन प्लांट्स को खाते हैं और अपनी जो भी एक्टिविटी होती है उसको परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ में। हार्बीवोरस आर ईटन बाय मीट ईटिंग एनिमल्स नोन एज कार्निवोर। अब ये जो हार्बीवोर होगा ना इसको कार्निवोर खाएगा और कार्निवोर वो होता है यानी जो गोश्त खाता है। ठीक है। जो मीट खाता है। कार्निवोर डाइजेस्ट द एनिमल एंड दे ईट यूज एनर्जी एंड मटेरियल टू कैरी आउट ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ अगेन। सो इट्स वेरी इजी। अब लाइक हियर इज एन एग्जांपल। यहाँ पे आपकी एक एग्जांपल है। हियर इज अ ट्री। इस ट्री को कौन खा रहा है? जिराफ खा रहा है। ये ट्री आपका क्या होगा? प्रोड्यूसर होगा। ठीक है। वे एज प्लांट्स को खाने वाला कौन हुआ? वो होता है हार्बीवोरस। ठीक है। और जो क्या कहते हैं हार्बीवोरस को खा रहा है, जो मीट खा रहा है दैट इज लायन और जो है कार्निवोर। ठीक है। आई होप यू गाइस गॉट इट कि प्रोड्यूसर, हार्बीवोर एंड कार्निवोर। ठीक है। एनिमल्स ईटन बाय अदर एनिमल्स नोन एज प्रे। जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम प्रे कहते हैं और खाने वालों को हम प्रीडेटर्स कहते हैं। The arrow in a food chain shows the transfer of biomass, biological material from one organism to the next in the chain. ये जो arrows आपको दिख रहे हैं ना इन arrows को कहते हैं transfer of biomass। ठीक है। और in easy word you can say the transfer of energy। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यानी जो है ना इसको जो जिराफ ने खाया प्लांट को। ठीक है। तो इसकी एनर्जी इसको मिल गई, इसकी एनर्जी इसको मिल गई। ठीक है। अभी आगे पता चलेगा आपको और क्या होता है जब इसकी एनर्जी मिल गई तो।
लुक एट द वैरायटी ऑफ हैबिटेट अराउंड यू, थिंक ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब हमारे इन्वायरमेंट में मोस्टली देख लो कि जो है ना हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। हियर इट इज, मेज को, चिकन ने मेज को खाया यानी प्लांट खाया, और फिर ह्यूमंस ने उस चिकन को खा लिया। अ वेरी कॉमन एग्जांपल, ठीक है। ठीक है, बीटल लार्वा जो है ना उसने खाया लीफ, और बीटल लार्वा को कौन खा रहा है? ओराइल खा रहा है। ओराइल जो है ना वो एक येलो कलर का बर्ड है। इसको आपने मोस्टली जो है ना अपनी मूवीज वगैरह में देखा होगा, ठीक है। तो हियर इट इज, ठीक है। फूड चेन्स में हैव 2, 3, 4 और इवन 5 लिंक्स। लिंक्स यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और बहुत थोड़े भी हो सकते हैं, यानी इट डिपेंड्स, ठीक है, ऑन द सर्वाइवल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। At each stage, some materials cannot digest and lost as a waste. हर मटेरियल जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं करता एनिमल, तो वो वेस्ट हो जाता है। उस वेस्ट को जो है ना वो वेस्ट हो जाता है, वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो क्या होता है कि ना उस वेस्ट को इजेशन के प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जाता है। इजेशन इज लाइक, I hope you guys got it. This term ingestion, it's just a passing out all the waste from your body is known as ingestion. ठीक है, I have explained this in a very small sentence. ठीक है, the length of a food chain is limited by energy transfer through the chain of organism. At the top, the longer the chain, the less energy that reaches the organism. So here it is the most important thing. जितनी बड़ी फूड चेन होगी, जितनी बड़ी फूड चेन होगी उतनी एनर्जी कम ट्रांसफर होगी। अब हमारे पास यहाँ पे एक पिरामिड ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें आपको मैं बताती हूँ, जिसमें प्लांट्स के पास जो है ना एनर्जी है। बीटल्स ने प्लांट्स खाए, बीटल्स के पास बहुत सारी एनर्जी है, यानी फॉर एग्जाम्पल बीटल के पास 70% ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और जब तक ये यहाँ तक गए हॉक्स के पास, तो ये हो गई 10%, ठीक है। यानी इसके पास जो है ना बहुत ज्यादा एनर्जी थी और इसके पास हॉक के पास बहुत कम थी। ये देखो ना एनर्जी देखो ट्रांसफर होती जा रही है, बीटल से फ्रॉग, फ्रॉग के बाद स्नेक, स्नेक के बाद हॉक, यानी देखो एनर्जी देखो कितनी कम मिली है, ठीक है। तो ये जो है ना जितनी ज्यादा फूड चेन होगी उतनी ज्यादा जो है ना एनर्जी ट्रांसफर कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक फूड चेन भी मैंने आपको एक दिखा दूं, ठीक है। ये एक फूड चेन है और इसकी लेबलिंग भी है। सो प्रोड्यूसर, हियर इट इज अगेन प्लांट, ठीक है, उसको खाने वाला ग्रास ऑपर है, ठीक है। उसके बाद जो है ना फ्रॉग ने ग्रास ऑपर को फ्रॉग ने खाया, ठीक है। फ्रॉग को फिर स्नेक ने खाया, और फिर इसके बाद ईगल ने खा लिया। ईगल के बाद डिकम्पोज हो गया और फिर वापस से ग्रास। इसका प्रोसेस मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। डिकम्पोज, here is a food chain, यानी आई जस्ट वांट टू शो यू द सैंपल ऑफ फूड चेन कि भाई ये फूड चेन ऐसी होती है, ठीक है। एंड आगे मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी इसका, फूड चेन और फूड वेब का। फूड चेन्स टू फूड वेब। फूड चेन्स जो है ना एक बहुत ही सिंपल मॉडल होता है, ठीक है, और इसमें आराम से जो है ना आपको ऑर्गेनिजम्स पता चल जाते हैं, और ठीक है पता चल जाते हैं। फूड चेन में ये भी होता है कि ना फूड चेन इजीली टू अंडरस्टैंड होती है, बट इसमें ये होता है कि ना doesn't give more information। फूड चेन जो है ना इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं देती। वेयर एज फूड वेब में क्या होता है, एडवांटेज फूड वेब का क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है, लेकिन फूड वेब जो है ना कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। आई होप यू गाइस गॉट द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। here it is। अब कुछ एनिमल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिकन ईट मेज बट ऑल्सो ईट ग्रास, ठीक है। अब जो है चिकन जो है वो ग्रास भी खा रही है और मेज भी खा रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट इस तरीके से ना मतलब हर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को खाता रहता है, ठीक है। इससे इस तरीके से एक बनती है, एक फूड वेब बनती है। और जो है ना फूड वेब बेसिकली एक रिलेशनशिप बताता है, लिंक सेवरल फूड चेन्स टुगेदर, रिलेशनशिप बताता है फूड चेन में, यानी कितने ऑर्गेनिज्म ने क्या, किस ऑर्गेनिज्म क्या क्या चीज खाई और कितनी खाई, ठीक है। Even though food webs are still simple models and they are more realistic than food chains, food web जो है ना more realistic होते हैं, here's one of the advantage, more realistic होते हैं than food webs। अब यहाँ पे यार अपना ही देख लो, एशिया ट्री खाया और ग्रास खाया। एशिया ट्री खाने वाला इम्पाला भी, इम्पाला ने ये भी खाया है और ये भी खाया, ठीक है ना, और जेबरा ने भी खाया। यानी देख रहे हो कितने कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने एक फूड वेब भी दिखाया है।
ठीक है, ये तो मैंने बहुत आसान सा शेयर किया है कि देखो प्लांट्स ने जो है ये रैबिट भी, ग्रास हॉपर, फिर इसको स्नेक ने भी खाया, इसको फ्रॉग ने खाया, इसको ईगल ने खाया, इसको फॉक्स ने खाया। ठीक है, यानी बहुत एक सिंपल सी मैंने आपको दिखाई है ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसीलिए। ठीक है, वरना फूड वेब्स जो है ना इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। The circle of life. There is a big problem with our food chain models. बहुत बड़ा problem है. You know that undigested material is lost along a food chain and that energy is transferred to the environment. अब क्या होता है कि जो है ना, अब जैसे मैंने आपको एक digestion का process बताया कि that some दैट आपके जो बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वेस्ट जो होते हैं ना, वो आपकी बॉडी से पास आउट हो जाता है, सजेशन कहते हैं। अब जो है ना वो क्या कहते हैं, अगर ऐसे ही और ऐसे एनर्जी लॉस हो जाती है, तो जब ऐसे एनर्जी लॉस हो जाएगी तो यार ऐसे तो क्या कहते हैं हम, हमारे जो इन्वायरमेंट में वो चीज़ें ख़त्म, एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो हमारे पास चीज़ें कम हो जाएंगी। आई होप यू गाइस गेटिंग इट। तो हम क्या करते हैं कि ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स है, प्लांट्स को चाहिए थे मिनरल्स, चाहिए होते हैं सॉइल, चाहिए होती है मिनरल्स, चाहिए होते हैं आयरन मिनरल्स, आयंस चाहिए होते हैं। तो वो कहाँ से लें? तो एक कंटिन्यू के ये जो है ना, एक लाइफ को ऐसे डिजाइन हुआ हुआ है हमारी लाइफ को कि ना ये चीज कंटिन्यू रहे। तो किस तरीके से होते हैं? ते अगर मिनरल्स और सॉल्ट्स चाहिए ना, अदर न्यूट्रिएंट्स को, तो क्या होता है कि ना, if these things continued, eventually all life would end and there would be no mineral salt, other nutrients in the soil, so the plant would fail. अब जो है ना, प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा अगर मिनरल्स नहीं होंगे, मिनरल्स नहीं होंगे, आयंस नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक गुड न्यूज़ क्या है, हमारे पास डीकम्पोजर्स है। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं कि जो है ना वो बॉडीज को इनेबल करते हैं और चीज़ों को रिसाइकल करते हैं। यानी हमारे पास जो मिनरल्स और आयंस होते हैं ना, वो उनको बना के देते हैं। ठीक है, और रूट्स जो है ना वो प्लांट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, और जो है ना, सॉरी फॉर दिस, दैट रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, और जो है ना फिर क्या होता है कि ना फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है, पोटेशियम चाहिए होता है, मैग्नीशियम चाहिए होता है, वो जो है ना प्लांट को एक मिल जाता है। ठीक है, सो हियर इट इज अगेन, लॉट्स ऑफ ग्रास इम्पाला ने खाई, चीता ने खाई। अब जो है ना डीकम्पोजर्स क्या करेंगे, उसको मिनरल्स और आयंस जो है ना वो रिटर्न करेंगे। ठीक है, आई होप यू गाइस गॉट इट। यहाँ पे जब भी एक, अब डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, हियर इट इज वर्म्स। ठीक है, अब अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस फूड वेब। सबसे पहले क्या हुआ कि ना, प्लांट्स को जो है ना रैबिट ने खाया, रैबिट को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने। अब जब ये मर गया, जब ये मर गया, तो जो क्या हुआ कि इसकी बॉडी पे जो है ना ये वर्म्स आ गए। जब ये वर्म्स आ गए ना, तो अब जाहिर सी बात है ये कुछ प्रोड्यूस भी करेंगे। तो वर्म्स की हेल्प से जो है ना हमें क्या मिल गया, मिनरल्स मिल गए, आयंस मिल गए, और फिर से वापस से जो है ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, फिर वापस ये साइकिल चली। आई होप यू गाइस गॉट इट, फूड वेब क्या होता है। एंड या दैट्स इट, I will meet you in my next video, but before that, subscribe to my YouTube channel and hit the like button and share it with your friends. Till then, bye bye. Allah Hafiz.